Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nilvin Studies. In this video we are going to start the chapter Ledger. Starting with the meaning, ledger is a principal or primary book of accounts. Ledger students primary book होंदी है of the accounts लिए सब तो पहली book है, ठीक है, इसलिए इसनों principal book भी कहते हैं. इट इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट बुक इन दी अकाउंटिंग सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਐਸੇਟਸ से लाइबिलिटीज से कैपिटल से रेवेन्यू एक्सपेंसिस, ऑल द अकाउंट्स आर कंटेन्स इन दी लेजर. Coming to the features, it is a principal or primary book. The transactions are classified under appropriate heads called accounts. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ. ਆਪਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. ਹਰੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ. ਫਿਲਹਾਲ ਥਿਊਰੀ ਸਮਝ ਲਓ. ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨ ਇਨ ਦ ਲੇਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਰਾ ਦੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਐਨੀ ਅਕਾਊਂਟ. ਜੋ ਲੈਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ. ਲਾਈਕ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਫਿਫਥ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਸ ਫॉर ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ. ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ. ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਫॉर द ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆਫ ਲੈਜ਼ਰ. ਲੈਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਜਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹਾਊ ਮਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਰਨ ਫਰੋਮ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਮੇਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਾਈ ਦ ਜਰਨਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਜਰਨਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਓਨਲੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮੰਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੂਗਾ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ. ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਰਨਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੰਥ ਐਂਟਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ. ਹਰੇਕ ਮੰਥ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲੈਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਮੈਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ. ਫੋਰਮੈਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੇਮ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਈਕ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਸਦਾ ਨੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡੇਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਫਿਰ JF,
ਜਿਹੜੀ ट्रांजैक्शन जर्नल फोलियो जर्नल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ जो ट्रांजैक्शन पाई है सपोज मशीनरी टू कैश, ठीक है, ਆਪਾਂ ਹੁਣ कैश अकाउंट बना रहे हैं। सो स्टूडेंट ਉਹ एंट्री जर्नल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ नंबर पेज ਤੇ है ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ रिकॉर्ड करांगे। नैक्सट अमाउंट, फिर स्टूडेंट डेबिट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो और अमाउंट। सो इत्थे अपनी डबल लाइन हो जाएगी। सो अपन पता चल जाए इधरली साइड अपनी डेबिट साइड है और इधरली क्रेडिट साइड है। उपर अकाउंट के स्टूडेंट डेबिट शॉर्ट फॉर्म के विच लिखांगे और क्रेडिट नू इधरली साइड लिखना है। डेबिट वाली साइड अपनी लैफ्ट हैंड साइड होंदी है और क्रेडिट वाली अपनी राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड के उपर क्रेडिट लिखना है और डेबिट हैंड साइड के उपर अपनी लैफ्ट हैंड साइड के उपर डेबिट लिखना है। स्टूडेंट्स जो भी आप डेबिट साइड के उत्ते जो भी नेम ऑफ अकाउंट लिखांगे, ठीक है, इत्थे उसनों आप 2 दे नाल लिखना है और क्रेडिट वाली साइड के उत्ते जो भी आप अकाउंट का नेम पावांगे वो बाय लिखन तो बाद पाना है, ठीक है। सो 2 एंड बाय इंपोर्टेंट है। डेबिट साइड 2 आऊगा और क्रेडिट साइड बाय आऊगा। नैक्सट आप स्टूडेंट पोस्टिंग का मीनिंग देखते हैं। The term posting means the process of transferring transaction recorded in the original entry to the concerned accounts open in the ledger. So students posting की है, ਆਪਾਂ कहने हैं कि लेजर ਦੇ ਵਿੱਚ posting करती, ठीक है। So students posting means ਹੁੰਦਾ ट्रांसफर करना ट्रांजैक्शन जो जर्नल ਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्ड है। ओरिजिनल एंट्री मीनस जो जर्नल ਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्ड है उसनों ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ट्रांजैक्शन ਨੂੰ ट्रांसफर करते हैं किसी ਵਿੱਚ लेजर ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। पोस्टिंग करने के लिए कोई फिक्सड रूल नहीं हैगा। इट मे बी डन डेली बेसिस से, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस ऑफ द बिजनेस। कन्वीनियंस और बिजनेस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कदों भी आप पोस्टिंग कर सकते हैं। पोस्टिंग इज़ कंसीडर्ड कंप्लीट ओनली वैन बोथ डेबिट और क्रेडिट आस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल हैज़ बीन ट्रांसफर टू कंसर्न अकाउंट। पोस्टिंग उदों ही कंप्लीट मनी जाऊगी स्टूडेंट जो आप जो ट्रांजैक्शनस अपनी जर्नल दे विच आ, ठीक है। सपोज मशीनरी टू कैश ट्रांजैक्शन आप जर्नल दे विच हैगी है अपनी ट्रांजैक्शन। सो स्टूडेंट्स जो आप मशीनरी का भी रिकॉर्ड कर लिया और कैश अकाउंट भी बना लिया, मशीनरी अकाउंट भी और कैश अकाउंट रिकॉर्ड कर लिया लेजर दे विच, उस टाइम अपनी पोस्टिंग है वो कंप्लीट मनी जाऊगी, ठीक है। इट मीनस सारे आप ट्रांसफर करने हैं, जो भी अकाउंट्स आप उत्थे ओपन करांगे उसनों ट्रांसफर करना लेजर दे विच, एक ही है पोस्टिंग है। स्टूडेंट्स हुण आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट देखो, परचेज किते फर्नीचर फॉर 30,000 फॉर कैश ऑन 1 जुलाई 2018, पास द जर्नल एंट्री एंड पोस्ट इट इनटू द लेजर, ठीक है। परचेज फर्नीचर परचेज किते, परचेज फर्नीचर टू कैश 30,000, डेट आ जो अपनी 1 जुलाई, जर्नल एंट्री होगी। हुण आप इसनों पोस्ट करना लेजर दे विच। सो स्टूडेंट आप इसनों एक सिंपल क्वेश्चन अपना देखते हैं किस तरीके नाल होएगा। देखो स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री अपनी पै गई 1 जुलाई 2018, डेट है अपनी फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000 बीइंग फर्नीचर इज परचेज। सो स्टूडेंट हुण आप लेजर दे विच पोस्ट करते हैं। लेजर का स्पैसीमेन बनाइए आप, ठीक है। पहले अपनी डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर ये है अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ओके स्टूडेंट्स हुण अपने को जर्नल एंट्री दे विच 2 अकाउंट्स है, एक तो फर्नीचर अकाउंट है, एक अपने को कैश अकाउंट है, ठीक है। हुण स्टूडेंट्स आप दोनों अकाउंट्स ही ओपन करांगे लेजर दे विच, ठीक है। फर्स्ट अपना बनूगा फर्नीचर अकाउंट, इत्थे आप पा देंगे फर्नीचर अकाउंट।
सो स्टूडेंट अपना फर्स्ट अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट दे विच स्टूडेंट्स आपां हुण पोस्ट करना है, ठीक है, लेजर बना रहे हैं, आपां पोस्टिंग करनी है। सो स्टूडेंट फर्नीचर अकाउंट दे विच अपना पोस्टिंग किवें होगी, आपां पावांगे टू कैश। जो क्रेडिट साइड वाली हुंदी आइटम उसनूं आपां लेजर दे विच डेबिट साइड दे उत्ते लिख दांगे टू कैश करके। किन्नी डेट नूं 1 जुलाई 2018। अमाउंट 30,000। ये सी अपनी पोस्टिंग। आप फर्नीचर अकाउंट अपना हो गया, ठीक है। हुण आप स्टूडेंट कैश अकाउंट बनावांगे। सैकेंड अकाउंट अपना कैश सेम ही बनूगा। फिर आप डेट पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, वो स्टूडेंट्स अपना कैश अकाउंट द स्पैसीमन रेडी है। सो स्टूडेंट कैश अकाउंट दे विच आपां की पोस्ट करांगे। कैश अकाउंट दे विच आपां स्टूडेंट्स फर्नीचर पावांगे बाय वाली साइड, बाय फर्नीचर। जो डेबिट हुंदा है वो लेजर अकाउंट दे विच क्रेडिट साइड बाय वाल पा के आपां पोस्ट कर देना है 30,000। अमाउंट 1 जुलाई 2018। देखो स्टूडेंट्स आपां की कीता है, आपां दोनों अकाउंट्स बनाए। पहला फर्नीचर अकाउंट बनाया, फर्नीचर अकाउंट दे विच आपां टू कैश कीता 30,000 दे नाल, डेबिट साइड दे उत्ते रिकॉर्ड कर लिया टू कैश। फिर स्टूडेंट कैश अकाउंट बनाए, कैश अकाउंट दे विच आपां बाय फर्नीचर पावांगे कैश अकाउंट दी क्रेडिट साइड दे उत्ते 30,000। ये सी अपनी सिंपल जो आपां कीती है पोस्टिंग। सो स्टूडेंट बेसिकली आपां की लिखदे हुंदे इत्थे कारण लिखदे आ। सो फर्नीचर अकाउंट अपना डेबिट किस कारण होया, क्योंकि अपने को कैश चला गया। सो फर्नीचर अकाउंट दी डेबिट साइड अपने को कैश गया, सो आप डेबिट करता, ठीक है, कैश में। क्यों कारण लिखे है फर्नीचर को कैश गया अपने को। सो फर्नीचर अकाउंट ताई डेबिट किया अपने कैश गया, ठीक है। उसी तरीके ना कैश अकाउंट क्रेडिट होया ड्यू टू दी फर्नीचर परचेज किया अपने, ठीक है। सो इत्थे बेसिकली एक तरह के अपने कारण लिखे आते हैं, ठीक है। अकाउंट विच कारण लिखे आते हैं। जो आप सिंपल लैंग्वेज के विच गल करिए कि किस कारण ये होया। स्टूडेंट्स आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थर्ड। सो परचेज जन 1 2017 परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन। नवीन तो परचेजिज कितनी है गुड्स। सो स्टूडेंट अपन जर्नल एंट्रीज तो आप ऑलरेडी डिस्कस कीतियां हुई हैं, ठीक है ना, जर्नल चैप्टर दे विच। सो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जर्नल तो आंदा ही होगा। परचेजिज गुड्स फ्रॉम नवीन, परचेजिज अकाउंट डेबिट टू नवीन 18,000। जैन 4 सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 22,000। सो स्टूडेंट्स गुड्स सेल कितनी है 22,000 दियाँ, अपने को एंट्री आ रही कैश टू सेल्स 22,000। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 2500 दियाँ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। सो स्टूडेंट एंट्री होगी लॉस बाय फायर टू परचेजिज अकाउंट। जन 10 फर्नीचर परचेज फ्रॉम निशा, निशा तो फर्नीचर परचेज किया है। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मनीषा 25,000। जन 15 रेंट पेड इन कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 3,500। जन 30 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो स्टूडेंट कैश अपने को गया और बैंक आ गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 4,500। सो जर्नल पहले आप जर्नल दी एंट्रीज लिखते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स जर्नल एंट्रीज मैंने पा लिया, ठीक है। हुण आप बनावांगे लेजर। जो जो अकाउंट्स अपने ओपन किए हैं हुण सारे अकाउंट्स अपने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। सब तो पहला स्टूडेंट्स आप परचेजिज अकाउंट बनाने, लेजर बना रहे आप, ठीक है। लेजर दे विच अपना सब तो पहला होगा परचेजिज अकाउंट। डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ परचेजिज अकाउंट आप बना रहे हैं। परचेजिज अकाउंट से सब तो पहला आप टू नवीन लिखांगे डैबिट साइड के उत्ते टू नवीन। नवीन तो किन्ने दी आपां परचेजिज कीतियां सी 18,000 दियां 18,000 अमाउंट लिख लांगे। और जनवरी 1 की एंट्री है जन 1 डेट ली। सो स्टूडेंट जो क्रैडिट साइड दे हुंदा है उसनूं आपां डैबिट साइड के उत्ते रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हुण स्टूडेंट परचेजिज नाल रिलेटेड आपां सारियां ट्रांजैक्शन दे विचों होर देखांगे कि परचेजिज नाल रिलेटेड कोई होर ट्रांजैक्शन हैगी है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, पोस्ट करती आपां ने। ठीक है, सैकेंड अपने को परचेज नाल रिलेटेड नहीं हैगी। थर्ड ट्रांजैक्शन देखो सर स्टूडेंट्स इत्थे अपने को परचेजिज आ गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स परचेजिज इत्थे क्रैडिट दे विच है। सो आपां क्रैडिट साइड रिकॉर्ड करांगे बाय क्रैडिट साइड रिकॉर्ड करांगे बाय लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर नूं आपां क्रैडिट साइड ते रिकॉर्ड करांगे बाय लॉस बाय फायर। कितनी अमाउंट देना 2500 देना। डेट जन 7। स्टूडेंट देखो होर कोई ट्रांजैक्शन हैगी ये भी नहीं हैगी, ये भी नहीं हैगी, ये भी नहीं हैगी। ठीक है, सो अपना परचेजिज वाला अकाउंट है वो खत्म हो गया। सैकेंड अकाउंट आप बनावांगे नवीन का। ठीक है, स्टूडेंट्स कोई भी अकाउंट छड्डना नहीं हुंदा, सारे अकाउंट बनणगे। ठीक है, जिन्ने भी तुसीं जर्नल दे विच ओपन कीते है उन्हें सारे दे सारे अकाउंट लैजर दे विच बनणगे अपने। देखो स्टूडेंट्स नवीन दे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन देखो, इस दे विच आपां परचेजिज नूं कित्थे रिकॉर्ड करांगे क्रैडिट वाली साइड ते बाय परचेजिज। डेट जन 1 अमाउंट 18,000। ठीक है, जो डेबिट है उसनों आप क्रैडिट साइड रिकॉर्ड कर लिया बाय परचेज ना। ठीक है, होर कोई ट्रांजैक्शन नवीन नाल रिलेटेड नहीं हैगी स्टूडेंट्स। सो अपना ए अकाउंट भी खत्म हो गया। हुण नैक्सट अकाउंट देखते हैं आप कैश अकाउंट। कैश अकाउंट दे विच स्टूडेंट सब तो पहला डैबिट साइड ते आपां रिकॉर्ड करांगे टू सेल्स। कैश अकाउंट की डैबिट साइड के उत्ते टू सेल्स पा देंगे आपां। ठीक है, कितनी अमाउंट है 22,000। डेट हैगी अपने को जन 4। ठीक है स्टूडेंट, उस तो बाद सारिया ट्रांजैक्शन फिर देखते हैं अपने को। स्टूडेंट्स अपने को रेंट पे है। ठीक है, कैश अपने को क्रैडिट साइड पे है। सो क्रैडिट साइड के उत्ते आप जावांगे और रिकॉर्ड करांगे बाय रेंट। क्रैडिट साइड के उत्ते बाय रेंट पावांगे आप 3500। अपने को रेंट चला गया 3500 देना। होर स्टूडेंट एक कैश अपने को अपने डिपोजिट कराया बैंक के विच लास्ट के उत्ते। ठीक है, वो स्टूडेंट अपने को कैश है जो वो क्रैडिट साइड के उत्ते। सो बाय बैंक 4500। हुण स्टूडेंट्स अपनी कैश नाल रिलेटेड सारिया ट्रांजैक्शनस पै चुकी हैं। ठीक है, नैक्सट अपने को सेल्स अकाउंट है। सो स्टूडेंट हुण सेल्स अकाउंट ना सेल्स अपने को क्रैडिट साइड ते है। सो स्टूडेंट सेल्स अकाउंट की क्रैडिट साइड के उत्ते आपां रिकॉर्ड कर देंगे बाय कैश अकाउंट जनवरी 4 22,000। कैश नाल रिलेटेड होर कोई ट्रांजैक्शन नहीं। सो अकाउंट अपना इत्थे क्लोज हो गया। उस तो बाद अपने को लॉस बाय फायर का अकाउंट है स्टूडेंट्स। लॉस बाय फायर की आप डैबिट साइड के की रिकॉर्ड करांगे टू परचेजिज। सो लॉस बाय फायर का डैबिट साइड
टू परचेजेस किन्ने नाल 2500 दे नाल डेट पा देंगे जनवरी 7, ठीक है। ये भी अपना खत्म हो गया। परचेजेस अकाउंट स्टूडेंट आप बना चुके हैं, परचेजेस अकाउंट आप बना चुके हैं, ठीक है। उस तो बाद आप फर्नीचर अकाउंट बनावांगे। फर्नीचर टू मनीषा, सो फर्नीचर की डैबिट साइड के उत्ते आपां टू मनीषा रिकॉर्ड कर देंगे। जनवरी 10 टू मनीषा, मनीषा तो आपां फर्नीचर परचेज किया सीगा 25,000 दे नाल। सो स्टूडेंट्स हुण आपां मनीषा अकाउंट बनावांगे। देखो स्टूडेंट मनीषा अकाउंट बनाया, मनीषा अपना क्रैडिट सीगा, ठीक है, मनीषा अपनी क्रैडिट सीगी। सो क्रैडिट साइड के उत्ते आपां बाय फर्नीचर रिकॉर्ड करांगे 25,000 जनवरी 10 की एंट्री। उस तो बाद रेंट टू कैश से रेंट अकाउंट अपना डैबिट सीगा, डैबिट साइड ते जावांगे रेंट अकाउंट की, उससे आपां रिकॉर्ड करांगे टू कैश जनवरी 15 3500। उस तो बाद स्टूडेंट अपना एक लास्ट रह गया बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट रिकॉर्ड करांगे और उसकी डैबिट साइड के उत्ते रिकॉर्ड करांगे आपां टू कैश अकाउंट जनवरी 30 डेट पा देंगे और 4500 के नाल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरीके नाल स्टूडेंट्स अपने सारे अकाउंट्स बनते हैं। सो दैट कि अपना टॉपिक होर ज़्यादा क्लीयर हो जाए, एक एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट जो अपनी बुक के विच सैकेंड इलस्ट्रेशन है। गुड्स परचेज फ्रॉम फॉर कैश 20,000, परचेजेस टू कैश एंट्री होगी, ठीक है, जर्नल एंट्री। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीना, नीना तो परचेजेस कितने, इट मीनस क्रेडिट पे है, क्रेडिट परचेजेस टू नीना अकाउंट 15,000, कैश पे टू नीना, नीना टू कैश 12,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम फीज़ा, कैश अकाउंट डेबिट टू फीज़ा 43,000। सो ये अपनी जर्नल ट्रांजैक्शंस बन गया। You can see the journal entries. Purchases to cash 1st April 2016 20,000 20,000. April 3 purchases to Nina 15,000 15,000. Third transaction April 7 Nina to cash being cash paid 12,000. April 10 cash to Fija, cash receive होया अपने को 43,000. So student first of all अपनी एंट्री सी परचेजेस सी, ठीक है, ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗੁੱਡਸ परचेज ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ परचेजेस ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ परचेजेस ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ परचेजेस वाली ट्रांजैक्शन देखो, परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू कैश पाया सी, ठीक है। सो स्टूडेंट कैश उत्थे क्रेडिट सीगा। सो जो आप पोस्ट करते हैं उदों परचेजेस अकाउंट की डैबिट साइड के उत्ते टू कैश रिकॉर्ड करांगे, ठीक है। सो April 1 की एंट्री है टू कैश 20,000, ये फर्स्ट एंट्री सी। उस तो बाद स्टूडेंट आप गुड्स परचेज कीतियां सी नीना तो क्रेडिट के उत्ते। सो उस एंट्री दे विच जो नीना सी वो क्रेडिट हुई सी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स उत्थे आप परचेजेस अपना डैबिट सीगा, परचेजेस अकाउंट के डैबिट विच आप नीना नूं जो ਆਪਾਂ ने उत्थे क्रेडिट की सी, इत्थे डैबिट साइड रिकॉर्ड होगी टू नीना 15,000। डेट मैंशन करनी जरूरी है स्टूडेंट्स। उस तो बाद स्टूडेंट्स आप कैश अकाउंट बनावांगे। सो सब तो पहले वाली एंट्री के अपना कैश आया सीगा परचेजेस टू कैश, ठीक है। सो स्टूडेंट कैश अकाउंट उत्थे अपना क्रेडिट सी। सो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के उत्ते आप की रिकॉर्ड करना है परचेजेस जो उत्थे अपनिया परचेजेस डैबिट सी। सो इत्थे अपनिया क्रेडिट हो जाएंगे 20,000 के नाल, ठीक है। कैश अकाउंट क्रेडिट की साइड के उत्ते आपने परचेजेस जो रिकॉर्ड करना है 25,000 के नाल। उस तो बाद स्टूडेंट लास्ट एंट्री सी सैकेंड एंट्री April 7 की एंट्री है, थर्ड ट्रांजैक्शन है, हाँ, नीना टू कैश। इत्थे अपना कैश इत्थे आया है, ठीक है। सो स्टूडेंट इत्थे अपने को कैश की है क्रेडिट है। सो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड के उत्ते
ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਨਾ ਨੂੰ ਬਾय ਨੀਨਾ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਨੀਨਾ ਇੱਥੇ ਡੈਬਿਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 12,000 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਫੀਜ਼ਾ, ਕੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਟ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫੀਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੂ ਫੀਜ਼ਾ 43,000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਨਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਸ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਗਾ, ਨੀਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ 12,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਨੀਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਨੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਨੀਨਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਨੀਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀ। ਸੋ ਨੀਨਾ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨੀਨਾ ਤੋਂ 50,000 ਦੀਆਂ। ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੀਜ਼ਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾय ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ 43,000।